أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں گزارش کروں گی اپنی عزیز بہن سمرین فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مناجات بارگاہ الہی میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلاتے ہیں رو رو کے اہل عذاب، چلے آئے ابن مشکل کشا۔ بلاتے ہیں رو رو کے اہل عذاب، چلے آئے ابن مشکل کشا۔ ارے تمہیں حق زہرا کا ہے واسطہ، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ بلاتے ہیں رو رو کے اہل عذاب، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ ہے پھیلی جہاں میں عجب سی وبا، عطا سارے عالم کو کیجئے شفا، عطا سارے عالم کو کیجئے شفا۔ وسیلہ ہے بیمار کرب و بلا، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ بلاتے ہیں رو رو کے اہل عذاب، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ خدا کی شریعت کو دل شاد ہو، یہ ویران کعبہ
پھر آباد ہو، یہ ویران کعبہ پھر آباد ہو، لگانے علم مس پہ عباس کا، چلے عیب نے مشکل کشا، بلاتے ہیں رو رو کہ اہل عزا، چلے عیب نے مشکل کشا، ہو ہم پیچھے پیچھے تم آگے چلو، ہو ہم پیچھے پیچھے تم آگے چلو، نصیب بہینے کہ ایسا بھی ہو، تمہاری قیادت میں ہو قافلہ، چلے عیب نے مشکل کشا، بلاتے ہیں رو رو کہ اہل عزا، چلے عیب نے مشکل کشا، جسے دیکھیے یہ پریشان یہاں، جسے دیکھیے ہے پریشان یہاں، یہ وقت کرم ہے امام زمان، یہ وقت کرم ہے امام زمان، کرو ہر سوالی کی حاجت روا، کرو ہر سوالی کی حاجت روا، چلے عیب نے مشکل کشا، بلاتے ہیں رو رو کہ اہل عزا، چلے عیب نے مشکل کشا، میرا خواب بھی محو تعبیر ہو، اے مولا بقیہ کی تعمیر ہو، اے مولا بقیہ کی تعمیر ہو، لبوں پر مسلسل یہی ہے دعا، لبوں پر مسلسل یہی ہے دعا، چلے عیب نے مشکل کشا، بلاتے ہیں رو رو کہ اہل عزا، چلے عیب نے مشکل کشا، ہمارے عمل میں دکھاوا نہ ہو، محبت کا بس جھوٹا دعویٰ نہ ہو، پھر اشکوں کے لب خود یہ دیں گے صدا، چلے عیب نے مشکل کشا، بلاتے ہیں رو رو کہ اہل عزا، چلے عیب نے مشکل کشا، زمانے میں ہوتے ہوئے آپ کے، زمانے میں ہوتے ہوئے آپ کے، کہیں اپنے روداد کیوں غیر سے، میری غیرتوں کا تم ہی ہو انا، میری غیرتوں کا تم ہی ہو انا، چلے عیب نے مشکل کشا، بلاتے ہیں رو رو کہ اہل عزا، چلے عیب نے مشکل کشا، تم ہی ہو زمانے کہ ہو چارگر، تم ہی تو زمانے کہ ہو چارگر، میری مجھ سے بہتر تمہیں ہے خبر
कहूँ क्या मैं हाले दिले गम ज़दा, कहूँ मैं क्या हाले दिले गम ज़दा, चले आओ ऐब ने मुश्किल कुशा, बुलाते हैं रो रो के अहले अज़ा, चले आओ ऐब ने मुश्किल कुशा, हिलाल और मिसम की है इल्तिजा, हिलाल और मिसम की है इल्तिजा, तुम्हारी ज़बां से ए काश एक दफा, तुम्हारी ज़बां से ए काश एक दफा, सुने हम भी रोते हुए नाहिया, सुने हम भी रोते हुए नाहिया, चले आओ ऐब ने मुश्किल कुशा, तुम्हें हाक ज़हरा कहे वास्ता, चले आओ ऐब ने मुश्किल कुशा, बुलाते हैं रो रो के अहले अज़ा, चले आओ ऐब ने मुश्किल कुशा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ाकिरा आसिमा ज्वाइन कर चुकी हैं, अगर वो आ जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन सलामुन अलैकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका कैमरा म्यूट है, आपका कैमरा म्यूट है। मेरा कैमरा तो ऑन है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ नहीं, अभी आ गया, आ रही आवाज जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे क़ारियान क़ुरआन ग्रुप का तीसरा सेशन है, जिसमें क़ुरआन मजीद का यानी सवाल और जवाब पारे को पढ़कर और उसके बाद उसका यानी तीसरे पारे का जिस्ट भी इसमें बयान किया जाएगा। सूरह रहमान में परवरदिगार आलम कहता है कि अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी अल्लाह ने अल्लाह रहमान और रहीम है, उसने क़ुरआन का इल्म दिया, उसने इंसान को क्रिएट किया, बनाया और उसको तालीम किया, उसको उस इंसान को he taught him the mode of expression। ओके, तो कुरान मजीद का यानी अल्लाह ने माज़रत चाहती हूँ पारा 4 का जिस्ट इसमें इंशाल्लाह बयान किया जाएगा। तो कुरान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो किताब है जिसमें खालिक अपनी मखलूक से गुफ्तगू करता है, उसने गुफ्तगू की है और इंसान के लिए ये बायस फ़ख्र है कि इंसान जो है उससे उसका रब, उसका मालिक, उसका खालिक, उसका पैदा करने वाला उससे मुखातिब हो, उससे बात करे और उससे गुफ्तगू करे। और अल्लाह ने ये गुफ्तगू इंसान से किस तरह की है, यानी किस तरीके से इंसान से गुफ्तगू की है, क्या हमारे सामने वो आया, क्या उसने हमसे बात की? नहीं, बल्कि उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के जरिए कुरान को नाजिल किया और रसूल खुदा के जरिए उन आयात का इल्म हमको हासिल हुआ। और उसके बाद जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ मौक़ों पे आयतें नाजिल हुई, जिसे बाद में मुरत्तब करके पारों में और सूरों में डिवाइड करके और उसके बाद उसको मुरत्तब करके हमारे सामने इस तरह जो आज शक्ल है हमारे सामने कुरान मजीद हमको नजर आता है। तो कुरान का इल्म जो है इंतहाई
وسعت رکھتا ہے اپنے اندر. ہم آج جو کوشش کر رہے ہیں, ہم جو آج ایفرٹ کر رہے ہیں, یہ ایک بہت ہی معمولی اور بہت چھوٹی سی ایفرٹ ہے, بہت چھوٹی سی کوشش ہے, اور امید ہے کہ خداوند کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے گا. اور طویل وقت نہ لیتے ہوئے جو میں ذاکرہ اور عالمہ جناب ہنا دوسا صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور قرآن کے پارے کا جسٹ ہمارے سامنے پیش کریں. اور آپ کی پرسنالٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف کراؤں. آپ سب ان کی بارہا مجلسیں اور ان کا ذکر سن چکے ہیں, اور انشاءاللہ آج وہ جسٹ بیان کریں گی. اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ آپ چیٹ باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں, یا مجھے پرسنلی میسج کر دیں, اور میں انشاءاللہ پارے کے جسٹ کا جب اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد وہ سوالات آپ کے ان کے سامنے پیش کر دوں گی. میں دعوت دیتی ہوں محترمہ اور ذاکرہ ہنا دوسا صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور قرآن کا جسٹ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت ہی حقیر اور ناچیز بندی خدا کی, اور مناجات سننے کے بعد تو ایسا لگا کہ بے شک ہم سب کو ہر وقت اپنے آقا کو پکارتے رہنا چاہیے. اور یہ میں اپنی بہنوں سے بہت ہی خاص بات کہوں کہ جو دنیا کے حالات ہیں, اس پارے میں, اس جز میں جو سورہ آل عمران سے شروع ہوا ہے اور سورہ نساء پہ ختم ہو رہا ہے, اس میں پروردگار نے شاید ہم سب کے دلوں کی ہر سوال کا جواب دے دیا ہے. ایسے تو میں اس کو بہت مختصر طور پہ بیان کروں گی, لیکن بہت سارے سوالوں کے جواب اس پارے کے اندر موجود ہیں جو رب العزت ہمیں بتا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جز 4 یہ سورہ آل عمران کی 92 نمبر کی آیت سے اس کی شروعات ہے, جس میں پروردگار عالم ہمیں نیکی اور ثواب کی بلند ترین منزلوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ وہ کیسا عمل ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نیکی قبولیت کی منزل میں پہنچ جائے, اور نیکی کی اس کے ثواب بہت زیادہ ہو جائیں اور وہ رضائے الہی تک پہنچ جائے. جو 92 نمبر کی آیت ہے, آپ سب نے جنہوں نے پڑھ لیا ہوگا, تلاوت کر لی ہوگی اور ترجمہ پڑھ لیا ہوگا, یا جو نہیں پڑھے ہیں ان سب کو کہ ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ نیکی کس طرح کی جائے. آیت مبارکہ کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ دین خدا قربانیوں کا دین ہے, اور جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک نیکی اس منزل پہ نہیں پہنچے گی, اور جس کو نیکی کہا جاتا ہے اس منزل پر ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اور یہاں پر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری قربانیاں, کبھی نیند کی قربانیاں دینی ہوتی ہیں ہمیں, کبھی مال کی, کبھی اپنے نفس کی یعنی ہمارا خواہش ہوتی ہے اس کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور ان ساری چیزوں کو سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کو ہم کس طرح
उस मंजिल तक हम नेकी की पहुंच सकते हैं। उसी तरह आगे की आयतों में 93 से 100 तक की आयतों में बयान किया जा रहा है, जहां पर छोटी छोटी चीजें हैं, हलाल और हराम, खास तौर से खाने के अहकाम हैं, कि जहाँ पे ये बयान किया जा रहा है कि क्या क्या चीजें तुम्हारे लिए हलाल हैं। और वहीं पर परवरदिगार आलम जब अपने रसूल को हुक्म देता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो रसूल अकरम ने जब लोगों को दावत दी, लोगों को ये कुरान मजीद की आयतें की तिलावत की, उनको समझाया, तब तो परवरदिगार आलम इस यहाँ पे जो बयान कर रहा है रब्बुल इज्जत कि जब सरकार दो आलम ने अपने को मिल्लत इब्राहिम का पाबंद करार दिया, और जैसे ऊंट के गोश्त को हलाल करार दिया और काबे को किबला बनाया, तो यहूदियों ने हंगामा कर दिया कि ये दोनों बातें तो मिल्लत इब्राहिम के खिलाफ हैं। और उसी को 93 नंबर की आयत में बयान किया गया है कि अब तुम तौरात को पढ़ो, और अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, यानी कि जब तक हम अपनी अल्लाह की नाजिल की हुई किताब की तिलावत नहीं करते हैं, तब तक हमें अहकामे परवरदिगार आलम या उसके कानून को हम समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे परवरदिगार ने ये बताने की कोशिश की कि अब तुम तौरात को पढ़ो, और अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तब तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा कि उसमें ऊंट के गोश्त को हलाल होने का जिक्र किया गया है। और तौरात पहले तौरात में और पहले याकूब उससे परहेज किया करते थे, जनाब याकूब पैगंबर ऊंट के गोश्त से परहेज किया करते थे, लेकिन उस इसको हराम नहीं करार दिया परवरदिगार ने, बल्कि वो एक रस्मी था कि वो उसका एहतराम करते थे कि कितना बड़ा जानवर हो और उसको हम उसको हम अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो इस बात से अपने आप को रोके रहते थे, अपने नफ्स को कंट्रोल करते थे। लेकिन परवरदिगार आलम यहाँ फरमा रहा है कि तुम रस्म को ले रहे हो और कानून को भूल रहे हो, हुक्म इलाही को भूल रहे हो। और वहीं पे परवरदिगार आलम फिर रसूल अकरम से बयान करता है कि खाने काबा बैतुल मुकद्दस से बहुत एंशियंट है, उससे बहुत पहले उसकी तामीर की गई है, और बैतुल मुकद्दस जनाब सुलेमान पैगंबर ने बनाया था। और काबा में जो आज तक मकाम इब्राहिम मौजूद है, जो इस बात का ऐलान कर रहा है कि तामीर इब्राहिम ये तामीर इब्राहिम है, लिहाजा मिल्लत इब्राहिम का तकाजा है। और हम सब जानते हैं कि चाहे वो ईसाई मजहब हो, चाहे यहूदी मजहब हो, ये चाहे इस्लाम हो, हम सब मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करने वाले हैं। उनकी मिल्लत से हमें उनकी उम्मत कहा जाता है। ऊंट के गोश्त को हलाल समझा जाना और काबे को किबला बनाया जाना, ये जो है वो हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये भी पहले की किताबों में भी इसका जिक्र किया गया है। और हम ये न सोचे कि ये हम कि हम इसको हम अब उम्मत मोहम्मदी इसको इस्लाम में हराम करार दिया गया, बल्कि ये पहले की हजरत इब्राहिम के जमाने से इसे हलाल करार दिया गया है ऊंट के गोश्त को। और इसको अहले किताब अब कहते हैं कि जैसे कि ये खाने काबा जो है ये इतना बाबरकत घर है, अमन का घर है, जिसे परवरदिगार ने बनाया, और फिर परवरदिगार आलम ने इसे हिदायत का जरिया करार दिया है। तो वही हम सोचे कि जहां बैतुल मुकद्दस रसूल अकरम ने इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा की है, वहीं लेकिन खाने उसके बाद खाने काबा की तरफ हुक्म इलाही। तो परवरदिगार आलम यहाँ पे यही बताना चाहता है अपनी आयतों कलाम के जरिए कि देखो, तुम रुख किसी की तरफ भी करो, जब हुक्म इलाही जो हो उसकी इताअत करना, ये एक मुसलमान होने की निशानी है। ये
اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، وہ بھی جو نصرانی ہے، جو یہودی ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، لیکن چونکہ وہ اطاعت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ جو ملت ابراہیم ہے اس میں بھی وہی چیزیں موجود ہیں جو توریت میں ہیں، جو انجیل میں ہیں، اور آج جو قرآن مجید میں ہیں۔ اور یہی اہل کتاب سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم دوسروں کو گمراہ مت کرو، بلکہ راہ خدا سے صاحبان ایمان کو روکتے ہیں یہ لوگ، اور گمراہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ تم ان کو گمراہ مت کرو۔ اور یہودی اور عیسائی ہر دور میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم ہوشیار رہو اور تم گمراہی کی طرف اپنے رخ کو نہیں موڑو۔ وہی 101 اور 100 سے لے کر 108 نمبر 108 نمبر کی آیت تک پروردگار عالم ہمیں مخاطب کر رہا ہے کہ کس طرح تم گمراہی سے بچ سکتے ہو۔ اس طرح اللہ نے گمراہی سے بچانے کے لیے حبل اللہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو تمہیں گمراہی سے بچا سکتی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ دین الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور وہ چیزیں ہیں جو ائمہ طاہرین ہیں، جو عملی، جن کو کہتے ہیں نا کہ قرآن صامت ہے اگر قرآن مجید، تو قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن ہمارے ائمہ طاہرین اور رسول اکرم ہیں، جن کے اگر ان کے دامن سے متمسک ہو جائیں، اگر اس حبل اللہ اور اس کو پکڑ لیں، یعنی یہ ایسی مضبوط رسی ہے کہ جو ہمیں اپنے رب العالمین سے جوڑتی ہیں، اور یہ ہمیں دین سے الگ نہیں کر سکتی، ہمیں ثابت قدمی عطا کر سکتی ہیں۔ اور وہی اس کے بعد کی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے کہ اختلافات اور تفرقے سے روکا گیا ہے ہمیں، اور یہی کہا گیا ہے کہ ڈو ناٹ بی ڈیوائیڈڈ۔ کیوں؟ کیونکہ جب تفرقہ ہوتا ہے، جب اختلافات ہوتے ہیں، تو امت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے امت، اور اسی لیے دین اسلام جیسی ریسمان ہدایت سے تمسک اور گزشتہ نسلی اختلافات کے مقابلے میں برادری کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یعنی اسلام وہ مذہب ہے جہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے میں مختلف گروہوں میں مت بٹ جاؤ، بلکہ ایک ساتھ جڑ کر ایک حبل اللہ کو پکڑ لو مضبوطی سے، اور پھر دیکھو کہ تمہاری طاقت کتنی بڑھ جاتی ہے، تمہارے اندر کتنی پائیداری آ جاتی ہے، ثابت قدمی آ جاتی ہے۔ ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں نا کہ حالات ایسے ہیں کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو دین صراط مستقیم پہ، دین الہی پہ ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا کتنا مشکل ہے، اور وہاں جہاں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ آج ٹیکنالوجی ان کی مدد کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید کی آیتیں ساری ٹیکنالوجی کو فیل کر سکتی ہیں۔ بس اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم ہر وقت زیادہ تر ان اسکرین سے نہ جڑنے کے بجائے تم اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑ کے رکھو، کیونکہ قرآن مجید میں تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، تمہاری ہر مشکلات کا حل ہے۔ اور یہی جہاں اس نسلی اختلافات سے روکا گیا ہے، برادری کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر کیوں ہم مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں؟ یہ غور کرنے کی مقام ہے کہ اسی لیے دنیا ہمارا فائدہ اٹھا رہی ہے ہم سے، کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے بٹ گئے ہیں، اور آج اس ماحول میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اور اس طرح جڑ جائیں کہ خوف کھائے دشمن اسلام ہمیں دیکھ کر کے ہم کتنا ایک دوسرے سے، اور جہاں اللہ سے جڑنے کی بات ہے، رسول سے جڑنے کی بات ہے، ائمہ طاہرین کے دامن سے تمسک ہونے کی بات ہے، وہیں دیکھیں کہ پھر ہمارے دل اتنے رحم
दिल हो जाते हैं, हमारा कल्ब इतना खाशे और इतना कहते हैं ना हम्बल हो जाता है परवरदिगार की बारगाह में कि हम अगर मोहब्बत करते भी हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। और जब खड़े हो जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो किस मसलक के हैं, बल्कि हम खड़े हो जाते हैं और हम अल्लाह के बंदों की जान बचाने के लिए, सच्चों की, मजलूमों की जान बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम कुरान मजीद की से मुतमस्सिक रहें, अइम्मे ताहिरीन के सेइंग्स और अल्लाह की हबलुल्लाह दीन इलाही से मुतमस्सिक रहें, ये तभी हो सकता है। और उसके बाद परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर इख्तलाफ ना हो, तफरका ना पाया जाए, तुम डिवाइडेड मत हो, तो फिर तुम्हारे अंदर से ही एक जमात, एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अम्र बिल मारूफ की दावत दे, जो नेकी की दावत दे, जो कहते हैं ना कि हु इनवाइटेड टू डू गुडनेस एंड एंजॉयिंग द डूइंग ऑफ द राइट, एंड कि तुम आओ और नेकी की तरफ बुलाया जाए, नेकी की तलकीन की जाए उनको उनको और इस तरह हम क्या होंगे, जब नेकी की तरफ हर कोई अगर नेकी करना चाहेगा ना, नेकी की तरफ क्योंकि परवरदिगार आलम हमें बेहतरीन मंजिल और कामयाब मंजिल पे पहुंचाना चाहता है। और जब हम नेकी की मंजिलों में पहुंचेंगे तब हम सोचेंगे कि हमें इससे कुछ नहीं कि कोई हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, बल्कि तब हम ये सोचेंगे कि हमें अल्लाह की खुशी दरकार है। और यही फिर हम कहते हैं कि और हमें दूसरी और वही जमात हमें इससे कहेगी कि फॉरबिड द डूइंग ऑफ व्हाट इज रॉन्ग, कि जो बुरे कामों से हमें रोकने वाले हों। यानी इतना इल्म हो उस ग्रुप के पास जो बुराई नेकियों का हुक्म दे, हमें नेकियों की तरफ रागिब करें, हमें पुकारें, बताएं, रास्ता दिखाएं, और उसके बाद हमें बुराइयों से रोकें, उन बुराइयों की निशानदही करें कि देखो ये बुराई है। और वो कौन कर सकता है? वो आलिम दीन कर सकते हैं हमारे कौम के और हमारे उम्मत के जो और इसीलिए वक्त के इमाम ने कहा है कि तुम हमारी गैबत में उलमाए दीन से रुजू करो, और इसीलिए तकलीद का हुक्म दिया गया है ताकि हमारे अंदर तफरका न पैदा हो। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कि इस काम के लिए ऐसे तो ये हर मुसलमान का फर्ज है कि नेकी की दावत दे, कुरान की वो जिस तरफ बुला रहा है उसकी दावत दे, और हर गुनाह से जो हमें परवरदिगार आलम की उत्स और सुबुहुन वो परवरदिगार से दूर ले जाए, उसे हमें दूर रहना है। ये हर मुसलमान का फरीजा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उतना इल्म होना चाहिए, उतनी नफ्स में पाकीज़गी होनी चाहिए, और इसके लिए जरूरी है। और हमें फितना और फसाद से दूरी के लिए इस तरह एक ग्रुप को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, और ये हमारे लिए उलमाए दीन हमारे रहबर हैं जो हमें बताएंगे। परवरदिगार आलम हमारे उम्मत के हर उलमाए दीन, पाकीज़ा नफ्स उलमाए दीन जो अल्लाह के हर एहकाम को फॉलो करते हैं और अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं कि हम उनकी तकलीद करें और इस तरह फितना और फसाद से अपनी उम्मत को बचा सकते हैं, हम अपने खुद को बचा सकते हैं। परवरदिगार आलम ने जहां इसी आयत के बाद रिशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि परवरदिगार आलम उम्मत मुस्लिमा को बेहतरीन उम्मत करार दे रहा है और इसीलिए उसने पैदा किया है, लेकिन उसके लिए बेहतरीन 3 अलामतों का जिक्र कर रहा है कि वो क्या निशानियां हैं जिसके जरिए बेहतरीन उम्मत कहे जा सकते हैं। लोगों के लिए काम करना है, यानी जब हम काम करें तो किसके लिए करें तो दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारी नीयत क्या हो कि हमारा रब्बुल आलमीन राजी हो जाए, हमारा रब्बुल आलमीन खुश हो जाए। नेकियों का हुक्म दें,
यानी लोगों के फायदे के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए काम करें, नेकियों का हुक्म दे, बुराइयों से मना करें। ये न सोचें कि हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, बल्कि ये सोचें हमारे अपने रब्बुल आलमीन से रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और उन सब के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईमान की मंजिलों को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर हम ये 3 काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा ईमान हमारे कमजोर हो, यानी ईमान बिल्लाह अगर कमजोर हो, तो फिर शायद हम क्योंकि इन सब के करने के बाद जब जो भी करता है उसे बहुत सारे तंज ताने सहने पड़ते हैं, अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जब अल्लाह के लिए हम कुछ काम कर रहे होते हैं, यानी ईमान बिल्लाह होता है, तो फिर ये सारी बातें दरगुजर हो जाती हैं, ये सारी बातें हम इग्नोर कर सकते हैं और फिर हम कदम आगे बढ़ाते हैं। वहीं परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि अब अगर ऐसा हम करते हैं तो हम उम्मती खैर हैं, और उम्मत कहे खैर मतलब बेहतरीन उम्मत कहे जाने के काबिल हैं। और जो इस कानून पर जिस कदर शिद्दत से अमल करता है, वो जिस तरह जितने अपनी कोशिश पूरी लगाता है, जितना वो कर सकता है, तो उस तरह उतनी ही उसका वजूद, उतना ही खैर उससे होता है अल्लाह की बारगाह में, और उससे उतनी बेहतरी इस कायनात को और उम्मत को मिलती है, और उसके वजूद में भी वो उम्मत इतनी खैर ही खैर उसको देखने के लिए मिलता है। और सबसे बड़ा खैर क्या है कि इंसान अपने नफ्स पे इतना, उसकी नफ्स में पाकीज़गी, उसकी रूहानियत में पाकीज़गी और बुलंदी आ जाती है। ये सबसे बड़ा सवाब है अल्लाह की राह में कदम बढ़ाने का, जो हमें दुनिया में, जो हम नहीं देखते हैं मोस्टली, लेकिन ये सबसे बड़ा कदम है। इसलिए ऐम्मे मासूमीन की तरफ हम रुख करते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि उनकी तमाम जिंदगी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में बसर हुई है, और उन्होंने कातिलों को भी नेकियों का हुक्म दिया है, अल्लाह अकबर, और करीब तरीन दोस्तों को भी बुराइयों से रोका है। यानी ऐसे अगर हम इस तरह खुदा के लिए काम करते हैं तो हमारे अल्लाह से भी रिश्ते मजबूत होते हैं, और वहीं हमारी अपनी भी इस्लाह होती है, और हमारे उतने रिश्ते रब्बुल आलमीन से मजबूत होते हैं। और बेशक नहजुल बलागा में परवरदे मौलाए कायनात फरमाते हैं ना कि जिसने अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया, परवरदिगार आलम सारी दुनिया के साथ उसके रिश्तों को, सारे रिश्तों को मजबूत बना देता है और सारे रिश्तों को संभाल लेता है। वहीं जब 121 नंबर की आयत से परवरदिगार आलम अपने कलाम में जंग उहद का तस्करा शुरू करता है। जब कहते हैं ना कि जंग उहद जब हो रहा था, उस वक्त अबू सुफियान बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए, आप सबको पता है कि बदर में सिर्फ 313 थे, यानी कितनी कुव्वत अता होती है इन सब बातों से। कुरान मजीद क्या 313 थे, लेकिन फतह याबी अल्लाह ने अता की। हम ये सोचें कि आने वाले वक्त में भी 313 मौला को चाहिए जो सबसे करीबी होंगे मौला के, और इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम वो फतह याबी, इस्लाम की बुलंदी दिखाएगा दुनिया को। और उसके बाद 3,000 का अबू सुफियान लश्कर लेकर, फौज लेकर हमला किया है मदीने के ऊपर, और रसूल अकरम के पास सिर्फ 1,000 अफराद को लेकर रसूल निकले हैं, जिसमें से अब्दुल्ला इब्ने अबई मुनाफिक ने बहका दिया और लोगों को, क्या कि उनके पास इतनी ताकत है, इतना उनके पास असलहा है, इतना कुव्वत है, और इस तरह 300 लोग बहक गए और सिर्फ 700 यानी 700 लोग बच गए रसूल के साथ। रसूल अकरम ने 50 तीरंदाजों को दर्रे के ऊपर खड़ा किया, क्योंकि वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका था, और वहां पे खड़ा करने के बाद रसूल अकरम ने कहा कि चाहे शिकस्त हो जाए,
چاہے ہمیں ہم فتح یابی حاصل ہو جائے، تم اس درے کو چھوڑ کر مت ہٹنا۔ اور وہاں پر قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جب مولائے کائنات نے ان کے بڑے بڑے پوزیشن والے لوگوں کو، دشمنوں کو جب قتل کرنا شروع کیا، اور 9 قتل ہو گئے مولائے کائنات کے تلوار کے ذریعے، تو سب پورے وہ بالکل ان کے قدم اکھڑ گئے دشمنوں کے، اور وہ بھاگنا شروع کر دیا سب نے، اور اپنی چیزیں چھوڑ کے بھاگنے لگے اپنی جان بچا کر۔ اور اس وقت سب لوگ مسلمان مال غنیمت کی طرف دوڑنے لگے۔ یہاں پہ اور درے میں جو لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت جو کچھ لوگ نیچے آ گئے اور وہ بھی مال غنیمت لوٹنے لگے اس وقت۔ اور جیسے ہی درے پر انہوں نے چھوڑا اپنی جگہ کو، کہ دشمن پھر سے جا کر اسی درے کے ذریعے پھر سے حملہ کر دیا انہوں نے۔ اور یہ احد کی جو جنگ احد تھی، وہ جیتی ہوئی جنگ پھر سے ہار گئے۔ اور وہاں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، جہاں جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا شہید ہو گئے، جو اتنے بہادر مجاہد تھے، اور وہیں رسول اکرم زخمی ہو گئے، ان کے کہتے ہیں کہ ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ میدان احد میں 70 مسلمان قتل ہو گئے، اور 22 کفار قتل کیے، 70 مسلمان شہید ہو گئے اور 22 کفار قتل کیے گئے۔ تو جنگ احد کے درمیان ہی اس کے بعد کی آیتوں میں بدر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے نا، کہ جب مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت وہ صرف 313 تھے اور وہ جیت گئے۔ اور ابھی کتنے تھے؟ 700 لوگ تھے، لیکن وہ ہار گئے۔ غور مطلب قرآن مجید توجہ دلا رہا ہے خود کلام الہی کہ تم سوچو تم کیوں ہار گئے، کیا نبی کی موجودگی میں بھی؟ تو سب سے پہلے قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ دیکھو، جب اخلاص ہوتا ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے کسی عمل میں، تو فتح یابی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000، اور اس طرح اللہ نے مدد کی اور فتح یابی عنایت کی۔ قلب پہ اس طرح اطمینان قلب نازل کر دیا مجاہدوں کے اوپر، اور اللہ کی غیب سے مدد آ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اور انسان اسی بات کو غور کر لے کہ جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن جب ہم دنیا کی طرف مڑے ہوتے ہیں، ہم آج کتنی بار دعائیں کرتے ہیں نا، قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب کچھ صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم سوچیں کہ ہم مڑ کے دین کی طرف دیکھیں، اے رب العالمین کے دین، تجھے کیا چاہیے؟ تو کیا چاہتا ہے ہم سے؟ تو کس طرح ہم سے چاہتا ہے کہ ہم تیری مدد کریں؟ اور یہی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ دیکھو، لوگوں کے ہوتے ہوئے، تھوڑے اسلحے بھی ہوتے ہوئے، سواریاں بھی ہوتے ہوئے، تم شکست کھا گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تم مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، دنیا کے مال و دولت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور تم نے رسول کی آواز، ان کی اطاعت کو توجہ نہیں دی تھی۔ وہیں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو بھی کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے، یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں نا، جب دین الہی میں سب کچھ ہمیں اچھا معاف کیجیے گا، دنیا میں جب ہمیں بہت کچھ اچھا نظر آتا ہے کہ ہر طرح کا عیش و آرام ہے، سب کچھ ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم اس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، دین الہی کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ دیکھو، دین الہی کو چھوڑنے کے بعد جب تم کفر کی طرف آ جاتے ہو، جب تم جانتے ہو کہ دین الہی کا مقام کیا ہے، تو پھر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جب تم مقابلہ کرتے ہو کسی سے، تو تم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہاں، یعنی کفار جب پلٹ جاتے ہیں اپنے دین کی طرف، تو سوائے ذلت کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اور لیکن
जब उसके बाद भी वो तौबा करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अल्लाह दिलों का हाल जानता है कि तुम दिल से तौबा करो और अपनी बात पर जमे रहो, नहीं तो अल्लाह। और कहते हैं ना कि कुफार क्या करते हैं, हट धर्मी करते हैं कि हम नहीं ये तो सही नहीं है, ये सही है, यही करना है, यानी कलाम इलाही को का इनकार करते हैं, रसूल की मुकद्दस जबान से सुनते हैं फिर भी इनकार करते हैं। परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि फिर उनके लिए मैंने अजाब ही रखा है आखिरत में। और उसके बाद की सारी आयतों को खुलासा बयान करते हुए जब हम 130 नंबर की आयत पे आते हैं तो वहां पे परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि इंसान क्या चाहता है, दुनिया का माल और उसमें बढ़ोतरी हो, ये हो वो हो। इसीलिए आज दुनिया में क्या हुआ, सूद का निजाम कायम हो गया है। सूद पे कितने लोग हैं जो जुल्म करते हैं गरीबों के ऊपर, जिनके हर तरह से जिनको इतना दबाया जाता है, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, नफसानी जिस्मानी हर तरह से। और कुरान की आयत फरमा रही है, ए ईमान वालों, ये दोगुना चौगुना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो कि शायद निजात पा जाओ। यानी दुनिया में माल और दौलत की बढ़ोतरी और उसको बढ़ाने के लिए तरह तरह के सिस्टम और लॉज बनाए जाते हैं। परवरदिगार ने साफ अपने इस दुनिया के निजाम को, क्योंकि पहले जमाने में भी यही होता था, बिल्कुल हराम करार दे दिया है और कहा है कि जो इसका इनकार करता है वो इस्लाम से खारिज है। सूद का एक एक पैसा हराम है, बल्कि ये है कि तौबा कर लिया जाए, अगर जो चीज हो चुकी है और सिर्फ अपना सरमाया ले लिया जाए तो तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है। और यहीं पर जहां पर परवरदिगार ने सूद का सजा, जहाँ पे सूद की सजा का जिक्र किया है, वहां पे अजाब का जिक्र किया है, तो वहीं पर कहा गया है कि काफिरीन का जिक्र इशारा है कि सूदखोर के लिए काफिरों जैसा ही अजाब है। और ये सूद के बदतरीन अमल होने की बेहतरीन दलील है। इसलिए कि ये सूद क्या है, ये इंसान को खत्म करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, यानी ये इंसान को इतना जहनी और नफसानी साइकोलॉजिकली भी इतना इंसान प्रेशर में रहता है इसकी वजह से। और परवरदिगार आलम चाहता है कि इंसान अब फ्रीडम के साथ जिए, उसकी परेशानियों को दूर करना चाहता है परवरदिगार। इसलिए अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने सूद की बुराइयों का तज़किरा करने के बाद कहा है मग़फ़िरत, जन्नत और इंफाक की दावत दी है। अब क्या कह रहे हैं परवरदिगार कि इतनी बुराई है सूद में कि इंसान को बिल्कुल खत्म कर देता है, लेकिन जब हम अल्लाह की राह में अनफाक करते हैं तो फिर अल्लाह अपने मग़फ़िरत के में वुसअत देता है, मग़फ़िरत के दामन को फैला देता है, यानी अपनी रहमत के साथ उस दामन को फैला के जन्नत की बशारत देता है। आओ अपनी अल्लाह की राह में अनफाक करो, अल्लाह की तरफ अपनी खर्च करो अल्लाह की राह में, और लोगों के लिए फायदे के लिए तुम्हारा माल है वो लोगों के उसको फायदा पहुंचाओ। मगर यही जो हम सोचते हैं ना कि जब हम अनफाक करते हैं तो माल खत्म हो जाता है, वो बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर हमें दिखता है कि माल कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है हकीकतन कि वो माल महफूज हो जाता है। किसके अकाउंट में? अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में जो हमारा अकाउंट होता है वहां। और इसीलिए चौथे इमाम फरमाते हैं ना कि जो भी हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो सब कयामत में हमें वापस मिल जाने वाला है। वो चीजें हैं जो बिना किसी के वो कयामत तक पहुंच जाती हैं जब हम दुनिया में अल्लाह की राह में इन्फाक करते हैं। और इसीलिए परवरदिगार आलम फरमा रहा है, एक बहुत ही कुरान की बेहतरीन आयत है कि जो राहत और सख्ती में इन्फाक करते हैं, जब इंसान के पास बहुत होता है तब वो करता है बेशक,
اللہ قبول کرنے والا ہے اس کی نیتوں کا. لیکن جب انسان مشکل میں بھی ہوتا ہے, جب اس کے پاس کمی بھی ہوتی ہے, تب بھی وہ انفاق کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اللہ کی خوشی کے لیے. تو اس کے لیے, اور اسی کے ساتھ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, احسان کرنے والے ہیں, انہیں اللہ دوست رکھتا ہے. اور پھر پروردگار اس کے بعد کی آیت میں بھی فرما رہا ہے کہ جنت اور مغفرت ان کے لیے ہے کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور یہی مولا کائنات فرماتے ہیں نا کہ غصے کو پی جانے سے زیادہ شیریں اور لذیذ کوئی گھونٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور معاف کرنا صبر, اور یعنی جتنا انسان کے اندر پیشنس اور ٹالرنس ہوتا ہے تو کیا ظاہر ہوتا ہے انسان کہ انسان معاف کر دیتا ہے. اور معافی طاقت کی شکر گزاری ہے. انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن کہ وہ نہیں معاف کرے, لیکن پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے, یعنی اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرتا ہے وہ. اللہ اکبر. اور یہی پروردگار عالم یہاں ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم, بہت ساری آیتوں میں کہ صاحبان ایمان کو دوسری قوموں کے حالات کا جائزہ لینے کی دعوت دی گئی ہے ان آیتوں میں, تاکہ دیکھیں کہ انبیاء کرام کا جب اتباع نہیں کیا گیا ہے تو انجام کیا ہوا ہے. اور اگر وعدے الہی پر اعتبار کرنے والے کسی طرح جو وہ گھاٹا نہیں ہوتا ان کو کبھی بھی, جو اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے ہیں, اور وہ ہر تباہی سے بچ جاتے ہیں. یہیں پہ جنگ احد کے دوران کچھ اور مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن مجید کی آیتوں میں. ان نقطوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ انسان سخت غلطی کی ہو اور اس کا انجام شکست کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن جب ہم ہدایت کرنے میں خوف و رنج سے کوئی ہمت کرو, پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ میدان میں قدم جماؤ. آج تمہیں چوٹ لگی ہے تو بدر میں کفار کو بھی تو زخم لگے تھے, یعنی پروردگار عالم احد کے مجاہدوں کو آواز دے رہا ہے کہ آج تم زخمی ہو گئے ہو, آج تمہارے زیادہ قتل ہو گئے ہیں تمہارے مجاہدین, تو تم گھبراؤ مت, کیونکہ ایسا تو جنگ بدر میں بھی ہو چکا تھا. اور ایسے ہی دنیا الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. اور دیکھو جب تم میں سے تو شہداء پیدا ہونے والے ہیں. پروردگار عالم انکریجمنٹ عطا کر رہا ہے یہاں پہ, دشمن کو تو یہ شرف بھی نہیں نصیب ہوتا ہے. اور ہمت سے آگے بڑھو, اور یہ دیکھو کہ ایمان سلامت ہے تو بلندی صاحبان ایمان کا حصہ ہے, اور ایمان پر کسی شے کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی. پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جنگ بدر میں کیا کمی تھی. جنگ بدر جیتنے کے بعد کہ احد کے ہم نے جنگ ہار دی, پروردگار عالم ان آیتوں میں فرما رہا ہے آگے کی 140 نمبر کی آیت میں مطلب سارے کو کنکلوڈ کر کے یہ فرما رہا ہے کہ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں میں نا غرور پیدا ہو گیا تھا. جب نبی ساتھ رہیں گے تو فتح یقینی ہونے والی ہے, لیکن یہاں بھی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے, اور جہاد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور پھر تم دیکھو کہ جب اخلاص کے ساتھ تم قدم بڑھاؤ گے تو پھر تم فتح کامیابی تمہارا حصہ ہیں. اور یہیں پر کچھ اہم مسائل یہاں پہ قرآن مجید میں یا ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ جن کی طرف ہمیں جنگ احد کی ساری آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ آل عمران کی کہ کتنے کم ہوتے ہیں ایمان والے, لیکن اس میں بھی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ صاحبان ایمان کتنے ہوتے انہیں جانچا جاتا ہے, تولا جاتا ہے, تب وہ پرکھ کے آتے ہیں کہ صاحبان ایمان کون ہیں. شہادت کن لوگوں کا مقدر ہوتی ہے, جو جب پرکھا جاتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں
तब उनकी शहादत उनका मुकद्दर होता है। जालिमीन कौन होते हैं लोग, और ईमान किस तरह परखा जाता है ना, कि कभी माल के जरिए, कभी जान के जरिए, कभी ईमान के इम्तिहान के जरिए नेमत खुदा की नाशुक्री करने वाले किस तरह बर्बाद होते हैं। यानी सबसे बड़ी नेमत तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी है, उनकी हयात है उम्मत के बीच, लेकिन फिर भी जो लोग नाशुक्री करते हैं तो वो कौन लोग हैं। जो इन सारी बातों को हमें गौर करना चाहिए ताकि हम आगे के अपने फ्यूचर में सोच सकें कि अगर मुसलमान का एक आलम ख्याल ये है कि सिर्फ कलमा पढ़ लेना ही जन्नत की जमानत है और किसी मेहनत मुशक्कत की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैदान जिहाद में कदम नहीं जम सकते हैं, क्योंकि अमल नहीं होगा तो हमारे मैदान जिहाद में कभी भी हम अपने कदमों को नहीं जमा सकते हैं। कुदरत ने यही अपने कलाम के जरिए परवरदिगार आलम ने वाज़े किया है, जन्नत में दाखिले के लिए जिहाद और सब्र दोनों की जरूरत है, उनके बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है। और यहीं परवरदिगार इसकी बाद की आयतों में फरमा रहा है कि कितनी ही आयतें हैं जो जंगे उहद की ही को ही बयान कर रही हैं, इसलिए बहुत मुख्तसर थोड़ा करते हुए कि जंगे उहद में आप सबने पढ़ा होगा कि परवरदिगार आलम किस किस तरह से उनकी मदद करता है। कभी उन पे नींद तारी हो जाती है, कभी उनको उनके जहनों से माले गनीमत को निकालता, उनको अपनी जान की फिक्र नहीं होती। और ये आप सब जब चौथे इमाम की दुआ आजकल पढ़ रहे होंगे, जो उन मुजाहिदों के लिए दुआ है जो हमारे मुसलमानों के या जो भी अपने वतन के या जो भी इस्लाम के दायरे को मुहाफिजत करने वाले हैं, उन सब के लिए जो हम दुआ पढ़ते हैं, तो मौला फरमाते हैं कि उनके जहन को हर वक्त परवरदिगार तू अपनी तरफ रखना, उन मुजाहिदों का दुनिया की तरफ से उनके जहनों को हटा देना। और यहीं पर है कि किन किन के जरिए, किस किस चीजों के जरिए हम अपने सबाते कदम में लग़ज़िश पैदा हो जाती है हमारे। और यहाँ पे परवरदिगार आलम ने इन आयतों के जरिए मुनाफिकीन की अलामतें बताई हैं और उनकी तरफ हमें बताया कि वो क्या होती हैं, जो हिपोक्रिट्स। अगर हम खुद भी अपने अंदर ये देखते हैं कि ये जर्रा बराबर भी ये सिफात हमारे अंदर हैं, तो परवरदिगार से हमें दुआ करना चाहिए कि, क्योंकि सबसे अच्छी तरह हम खुद अपने आप को जानते हैं कि हमारे अंदर अगर ये हिपोक्रेसी मुनाफिकत की सिफात हैं, तो रब्बुल इज्जत तू तो रहीम और करीम है मालिक, तू हमारे अंदर से इन चीजों को निकाल दे, क्योंकि हम तेरी बारगाह में खड़े हैं, हम इन कुरान की आयतों की तिलावत कर रहे हैं, हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। परवरदिगार तू हमें इन सिफात से अलग कर दे जो सबसे ज्यादा तेरी बारगाह में नापसंदीदा है। और वहां परवरदिगार आलम इस आयतों के जरिए बता रहा है कि वो कौन लोग हैं जो इन्हें दीन और ईमान से ज्यादा अपनी जान की फिक्र होती है। आज हम भी गौर करें, ये खुदाई मामलात में भी दखल अंदाजी करते हैं और हर काम अपनी राय से करना चाहते हैं। और इसीलिए मौला गैबत में मौला ने क्या फरमाया कि आलिम दीन से रुजू करो अपनी जिंदगी के मामलात के लिए हर तरह से, क्योंकि जब तुम आलिम दीन से रुजू करते हो तो वो तुम्हें फैसला जिंदगी का देता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है, ये कुरान का फैसला तुम्हें बताता है। लेकिन जब तुम अपनी मर्जी से अमल करते हो तो अल्लाह के हुक्म में दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, ये मुनाफिकत की निशानी है। ये राह खुदा में शहादत को शरफ नहीं समझते बल्कि बाइसे तंज व तान समझते हैं और उनके कदम हमेशा मैदान से उखड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा ईमान उनके दिल में नहीं होता है, वो किरदार में कोई बात बाइसे सबाते कदम नहीं करते हैं और उनके दिल में वाकई
ایمان اور اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ شیطان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں اور شیطان کی آواز کے مقابلے میں رسول اکرم کی آواز بھی نہیں سنتے ہیں۔ یعنی منافقت کیا کیا ہے ان کے حصے میں۔ پھر اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ جو رسول اکرم کی اطاعت نہیں کرتا، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، ان کے حصے میں وہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے، لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ حسرت، یعنی ان کے دل میں نہ سکون ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حسرت میں ہی رہ جاتے ہیں، اور یہ رحمت و مغفرت سے زیادہ مال غنیمت اور زندگان دنیا کو عزیز رکھتے ہیں۔ یہی کہ پروردگار عالم ان ساری صفات سے ہم سب کو دور رکھے اور سارے مومن و مومنات کو دور رکھے پروردگار۔ اور یہی بہت ساری آیتوں میں پروردگار نے اس کو بہت اللہ رب العزت نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اپنی آیتوں کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کچھ اور 180 نمبر کی آیت تک پروردگار نے جنگ احد میں جو جو باتیں ہوئیں ان سب کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کا خدا مددگار ہے۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود بھی گھر سے نکل پڑتے ہیں تو خدا دشمنوں کے دلوں میں روب پیدا کر دیتا ہے اور وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسی ہو جاتی ہے انسان کو کہ ان کے وجود سے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی خاکی انسان ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے وجود کو دیکھ کر ہی اتنی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو لوگ دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایسی ہیبت ہوتی تھی کہ ان کے قدم جمتے ہی نہیں تھے اور بڑھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن یہ بات عزم جہاد کے بعد حاصل ہوتی ہے، جب انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ ہاں ہمیں بے شک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ شیطان صفت انسانوں کا خاصہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دشمن کی طاقت کا احساس دلا کر ان کو کہ ارے وہ تو بہت اسٹرانگ ہیں، وہ تو بہت مضبوط ہیں، ان کے پاس اتنے اسلحے ہیں، لیکن ان کے زیر اثر وہی لوگ ہوتے ہیں، کون ان سے امپریس ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں میں؟ جن کا ولی شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کی ولایت پر ایمان رکھنے والے اور ان سے متاثر، ان لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ جنگ خندق میں دیکھا گیا ہے۔ انسان کو کفر تک سے پریشان نہیں، کفر کی اسٹرینتھ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بیڑے سمندروں میں حرکت کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایمان والوں پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کا مددگار پروردگار ہے جو سارے بیڑوں کو ایک ساتھ غرق کرنے والا ہے۔ یعنی جب فوج اور فرعون سب ساتھ ہو جاتے ہیں نا، تب رب العزت غرق کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ وقت کے فرعون اور ان کی پوری فوج بھی انشاءاللہ ضرور بہت جلد اللہ کے اس سیلاب میں غرق ہونے والی ہے، اس عذاب کے سیلاب میں غرق ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ دنیا کی راحت و آرام کو خدا کی نگاہ میں محبوبیت کی نشانی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے ہر عیش و آرام میں ہیں تو ہم اللہ کے بہت محبوب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کفار کو راحت و آرام دے کر چھوٹ دیتا ہے کہ گناہ کا کوئی حوصلہ باقی نہ رہ جائے، اس کے بعد جب چاہے گا چند لمحوں میں پناہ کر دے گا۔ ڈوبنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ قلم بسر، یعنی بس پلک جھپکتے ہی ڈوب جاتے ہیں۔ فرعون کا لشکر کہاں ڈوب گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ خداوند عالم اچھے برے انسانوں سے باخبر ہے، لیکن ہر ایک کو باخبر نہیں کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ معاشرہ باقی رہنا، معاشرے میں اگر ہم ہر انسان کے برائیاں ظاہر ہو جائیں تو معاشرے میں بہت مشکل ہو جائے گا جینا۔ اس لیے پروردگار نے ہر چیز
अपने तई रखी है। वो जानता है हर दिल में क्या चल रहा है, किसकी नीयत क्या है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता है। लेकिन वही अपने मखसूस बंदों को गैब के हालात से बाखबर करता रहता है, लेकिन उन्हें ये हिदायत रहती है कि इस इल्म को सिर्फ मखसूस मौके पर इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारे काम जाहिरी कवानीन के मुताबिक अंजाम देंगे। और हम सब ये देखें कि आने वाले इमाम के हुकूमत में भी जो अल्लाह का फैसला होगा वही इमाम का फैसला होगा। और यहीं पर परवरदिगार ने एक और, जहाँ पे अनफाक की बात हो रही है, जहाँ पे लोगों की मदद करने की बात हो रही है, जहाँ पे जंगे उहद की बार बार जिक्र हो रहा है, वहीं पर है कि जो लोग बुख्ल करते हैं, ये कोई कोई बहुत बेहतरीन सिफत नहीं है बुख्ल करना, ये बहुत बड़ा ऐब और नुक्स है। ये कुरान की आयतें हैं ना कि जो बुख्ल किया करते हैं वो रोजे कयामत उनकी गर्दन में तोक बना दिया जाएगा, और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की मिल्कियत है। यानी जो अपने लिए माल को सिर्फ बचाते रहते हैं, तो अल्लाह कहते हैं ठीक है, तुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारा माल तुम्हारे पास रहे, तो फिर कयामत में वही माल तुम्हारी गर्दनों में लटका दिया जाएगा। यानी परवरदिगार आलम बता रहा है कि अनफाक करना तुम्हें जन्नत तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे गुनाहों की माफी दिलवा सकता है, लेकिन जब तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, बुख्ल करोगे, तो तुम्हें पर तो कितनी कयामत तुम्हारी ही माल से तुम्हें तुम्हें तो वही माल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। और फिर आगे की आयतों में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, एक पूरे अहले किताब के खोल के रख दिया है रब्बुल इज्जत ने कि आज यहूदी दुनिया की ऐसी ऐसी जहनी का एक ऐसा नमूना है कि कि हम देखें कि परवरदिगार आलम जब सारे अहले किताब भी अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, यानी वो हैं जिनको अल्लाह ने किताब जिनके लिए नाजिल की है, जिनके ऊपर जिनको दिया है अपने नबियों के जरिए किताबें, लेकिन फिर भी वो कुफ्र की मुशरिक शिर्क की तरफ पलट गए हैं, तो उनका अंजाम क्या होने वाला है। और रब्बुल इज्जत ने उन्हें भी वही अजाब जो काफिरों को है, और जो दीन खुदा से लोगों को भटकाते हैं, दीन खुदा से लोगों को दूर करते हैं, और वहीं परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि लेकिन मैं अपने नेक बंदों को क्या करता हूँ। 185 नंबर की आयत तक परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि वो लोग हैं जो हर नफ्स को मौत का मजा चखने वाला है, तुम्हारा मुकम्मल बदला तो कयामत में मिलेगा, हर कुछ यहाँ नहीं मिलने वाला है। बेशक हो सकता है बरज़ख में मिल जाए, बेशक हो सकता है रब्बुल इज्जत इस दुनिया में भी हमें इनकरेज करने के लिए देता रहे कि नेकी करते रहो, अम्र बिल मारूफ करते रहो, नहीं अनिल मुनकर करते रहो, अपने ईमान में इजाफा करने की कोशिश करते रहो। और उसके बाद परवरदिगार, और यही क्या कम है कि ईमान की दिल की तस्कीन कल्ब के लिए बेहतरीन सामान परवरदिगार आलम फराहम करता है, और दुनिया उसके मसाइब सिर्फ चंद रोजा होते हैं। यानी हम देखें कि हम आज जो हमें नजर आ रहा है, आंखें खोल रहे हैं हम, तो हमें दुनिया के क्या ये मसाइब, ये दुनिया सोच रही है ना कि मसाइब देकर हम खत्म कर देंगे, नहीं खत्म कर सकते। लेकिन हाँ, ये मसाइब तो बहुत थोड़े हैं ना, जब इंसान को परवरदिगार आलम जब वो अल्लाह की बारगाह में पलट जाता है तो हर मुसीबत से आजाद हो जाता है। और ये सिर्फ धोखा है उनका जो ये सोचते हैं कि वो किसी को खत्म कर देंगे, उसको मार देंगे, बल्कि सबको पलटकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाना है। और असल राह तो आराम जन्नत में है, जिसका हासिल हो जाना ही कामयाबी की दलील है। और कितने हैं जिन्हें नजरों के सामने कत्ल किया जा रहा है बम्बार्डमेंट के जरिए, और
किसी मतलब इस तरह से कत्ले आम किया जा रहा है, लेकिन वो सब आजाद हो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में शहादत पा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में ऊंचे 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 ऊंच फजीलत की मंजिलों में पहुंच रहे हैं, ऊंचे दर्जात पे पहुंच रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसीलिए परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि इन सब को करने के लिए तुम्हें अपने ईमान को बढ़ाना होगा। और वहीं परवरदिगार आलम एक दुआ करवा रहा है हमारे जरिए अपनी कलाम इलाही में। सोचे हम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गाइड करता है कि तुम अपने अपने लिए इस तरह दुआ मांगो कि परवरदिगार हमने इस मनादी को सुना जो ईमान की आवाज लगा रहा था, तो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ। तो हम ईमान ले आए और परवरदिगार अब हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी बुराइयों की पर्दापोशी फरमा, हमें नेक बंदों के साथ महशूर फरमा। इससे बड़ी क्या बात है कि जो ईमान ले आए वो नेक और साले बंदों के साथ हों, शुहदा व सालिहीन के साथ हों, अंबिया के साथ हों, सिद्दीकीन के साथ हों। और उसके बाद परवरदिगार आलम कह रहा है फिर इससे आगे भी तो दुआ मांगो कि परवरदिगार जो तूने अपनी रसूलों से वादा किया है उसे अता फरमा, और रोजे कयामत हमें रुसवा न करना। तू वादा के खिलाफ नहीं करता, बेशक परवरदिगार अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। उसने तो किया कहा है ना कि बहुत जल्द इस जमीन पर उसके वारिस, जमीन के वारिस अल्लाह के वो नेक और साले बंदे ही होंगे। तो चाहे आज दुनिया जुल्म ढा रही है, चाहे आज दुनिया कत्ल कर रही है, लेकिन आराम से अपने दिल को सुकून, अपने कल्ब को, अपने ईमान को इतना मजबूत रखो, अपने कदमों को इतना जमा के रखो कि बस सरबुलंदी तो हमें ही अता होने वाली है, ईमान वालों को ही अता होने वाली है बस। और इसके बाद परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि जहां इस सूरे की जहां सबसे शॉर्ट जो कंक्लूजन है, और यहाँ पे जो सूर्य आले इमरान की 200 आयतें हैं, और उन सब में सबसे ज्यादा जो खास आयत है कि ए ईमान वालों सब्र करो, सब्र की तालीम दो, जिहाद के लिए तैयारी करो, अल्लाह से डरो, शायद तुम फलाह याफ्ता कामयाब हो जाओ। यानी परवरदिगार आलम बता रहे कि ये ईमान वालों तुम्हें घबराना किस बात से है। अगर तुम्हारे पास ईमान है, सब्र है, और तुम सब्र की तब भी तलकीन करते रहो, एक दूसरे को सब्र की तरफ बुलाते रहो, जिहाद के लिए तैयारी करो। तैयारी किस तरह करें कि अपने नफ्स की जिहाद करो। जब तक तुम्हारे दुश्मन का तलवार तुम तक नहीं पहुंचती, तब तक शैतान की जो तलवार है उससे अपने आप को बचाओ, और शैतान से लड़ते रहो, शैतान को अपने खुद को बहकाने मत दो। और जब तुम शैतान पर गलबा हासिल कर लोगे तो फिर तुम और किसी से मत डरना, मौत से डरो, और फिर तुम उस कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाओगे जहां रब्बुल इज्जत तुम्हें पहुंचाना चाहता है। और इसके लिए परवरदिगार आलम बेहतरीन फरमा रहा है, तकवा इस्लाम का सबसे बड़ा शार है, किताब इलाही हुदल लिल मुत्तकीन है। शुरू होती है, हम सूर्य बकरा में देखें कि परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है कि किताब इलाही क्या है, हिदायत करने वाली है तकवा मुत्तकीन के लिए। तो वहां से शुरू होती है, हर हर कदम पर हर अमल खैर तकवा की शर्त बयान की गई है। यानी इन सब के लिए हमें क्या करना है, जिहाद कैसे करना है, इस तकवे के जरिए। अमाल की कबूलियत कैसे है, इस तकवे से। जन्नत में दाखिला कैसे है, तकवे के जरिए। मसाइब से निजात कैसे है, तकवे के जरिए। अज्र बेहिसाब कहाँ है, तकवे से है में है। परवरदिगार की अहले तकवा के लिए हर चीज, उसकी हर नेमत, उसकी हर जजा अहले तकवा के लिए है। और इसीलिए बयान कर दिया, तुम कहते हो ना कि तुम मौला अली के चाहने वाले हो, तो मैंने उसे मुत्तकीन का इमाम बना दिया है। इमाम अल मुत्तकीन है वो, बस उनके दामन से अगर
जुड़ जाओ, मुतमस्सिक हो जाओगे, तो वो तुम्हें लेकर तुम्हें उस जन्नत तक पहुंचा देंगे। और बेशक उनके फर्जंद जो आज दुनिया में हमारे सरों पे कायम है, इस वारिसे इंतकाम हुसैन मजलूम, कि वो हमें हम आज के दौर में जो वक्त के इमाम हैं, वो हमें जन्नत तक ले जाने के लिए आवाज दे रहे हैं कि आओ मेरी तरफ मुड़ जाओ। और जहां परवरदिगार ने, और यही जहां परवरदिगार ने के तकवा के जरिए ही सब्र पैदा होता है, और सब्र की तालीम भी तुम तभी दे सकते हो जब तुम्हारे अंदर खुद गुनाहों से दूरी और अल्लाह के हर हुक्म पर झुकने की नफ्स में इतनी ताकत पैदा हो जाएगी। और इसीलिए कहते हैं ना कि पहले हम खुद अपने आप को अच्छा बनाएं, तभी तो हम लोगों को दावत दे सकते हैं। और जिहाद की मुकम्मल तैयारी अपनी जिंदगी में कामयाबी और कामरानी तभी हो सकती है जब हम खुद मुत्तकी बनने की कोशिश करें। और बस इसी आयत के साथ, और के इमाम के ज़हूर के लिए सबसे बेहतरीन आयत है कि सूरे आले इमरान, यहाँ पर उसका इख्तिताम है। और परवरदिगार आलम कबूल फरमाए कि जो हमने जिक्र किया और जो हमारी बहनों ने सभी ने जो इसकी तिलावत की है। और इसके बाद हम सब बहनें, परवरदिगार आलम सूरे निसा चौथे पारे में ये जुज में शुरू हो रहा है, और यहाँ पर हम सब खुश हो जाएं क्योंकि इस सूरे का आगाज औरतों के काम से हुआ है, लिहाजा इसका नाम सूरे निसा रखा गया है। यानी औरतों के बारे में बताया जा रहा है कि औरतें कितनी मोहतरम हैं, कितनी एहतराम के लायक हैं। और यहीं पर जहां पे सूरे आले इमरान में बताया गया कि कितना इंसान को तफरके से दूर रहना चाहिए। यानी क्यों तफरका है? जब तुम मिल्लत इब्राहिम के फॉलो करने वाले हो तो तफरका क्यों नजर आता है? क्यों यहूदियों में कितने फिरके, इस्लाम के 73 फिरके क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम कुरान से दूर हैं। वो अपनी अहले किताब है होते हुए भी अपनी सही किताबों से दूर हैं, इसीलिए। और यहाँ भी परवरदिगार, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुरान कलाम इलाही हमें दावत दे रहा है कि देखो हर तफरके से दूर रहो। और यहाँ परवरदिगार आलम सूरे निसा की पहली आयत में फरमा रहा है, तुम क्यों अलग अलग अपने आप को समझते हो? क्या तुम भूल जाते हो कि तुम एक ही नफ्स से पैदा हुए हो? हजरत आदम, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा, वो हम सब के माँ बाप हैं। और फिर कहाँ नजर आता है कि तफरका है? क्यों तुम इसको भूल जाते हो? और परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि पूरी दुनिया में मैंने बकसरत मर्द और औरतें दुनिया में फैला दी हैं, सिर्फ दो की है, दो नफूस के जरिए। और उस खुदा से डरो जिसके जरिए एक दूसरे से सवाल करते हो, और कराबतदारों की बेताल्लुकी से भी अल्लाह तुम सब के अमाल की का निगरां है। यानी हमारे अमाल कहीं नहीं छोड़ के जा सकते हमें, वो सब का देख भी रहा है, सुन भी रहा है, और उन सब अमाल की महफूज भी कर रहा है कि देखो तुम इनकार नहीं कर सकते जो तुमने किया है। तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम अपने आप को डिवाइडेड न करके एक हो जाओ, क्योंकि तुमने दीन इस्लाम, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को माना है, उसको कबूल किया है तुम्हारा। और इसी तरह यहाँ पे हम कुरान की आयतें आगे बढ़ बढ़ के हमें बता रही हैं कि यतीमों के साथ कैसा हमें उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इब्तदा में इंसानों को एक असल की तरफ मुतवज्जा किया जा रहा है कि तुम्हारा असल क्या है? तुम इतना फख्र करते हो अपने आप पर, अपने बर्तरी, मैंने हम बहुत अच्छे हैं इसको तुम जाहिर करते हो, हम सबसे अच्छे हैं, हम ऐसे हैं। तो परवरदिगार आलम फरमाना है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक, तुम्हारी जो जड़ है, तुम्हारा रूट क्या है?
वो सिर्फ एक से है और तुम्हारे अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे जो झुक जाता है वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक अल्लाह का बंदा होता है। और उसके बाद यतीम हो, फकीर हो, लावारिस हो, सब भाई भाई नजर आते हैं। यानी उखवतो बिरादरी का जज्बा आम होता है। और इस्लाम को कबूल करने के बाद भी अगर दुनिया में आज भी हमारे अंदर, हम सब बहनें गौर करें, बहनें हम कितना अपने आप को बांटते रहते हैं। लोगों मतलब हम एरिया वाइज भी लोगों को बांटते हैं, हम अपने नस्ल वाइज भी लोगों को बांटते हैं, लेकिन कुरान की आयतें हमें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि तुम सब एक एक नफ्स से पैदा किए गए हो, तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हम सब कितने कराबतदार हैं, हम सब कितने करीब हैं, हम सब कितने, क्योंकि हमारे अंदर एक ही से उससे ही खून आ रहा है। और फिर परवरदिगार आलम फरमा रहा है यहाँ पे आगे की आयतों में, जो कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस पे इसको पढ़ा जाए, इसकी तिलावत की जाए, आलिम दीन से रुजू किया जाए, कि विरासत का मामला सूरह निसा में बयान किया जा रहा है और दुनिया को बताया जा रहा है कि जहां दुनिया में किसी औरत को हिस्सा नहीं दिया जाता, विरासत नहीं दी जाती, इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना मोहतरम करार दे रहा है अपनी अपनी इस कनीज को, के औरत को भी विरासत में हिस्सा मिल रहा है। और यानी परवरदिगार आलम बता रहा है कि देखो, औरत भी अपने माँ बाप की विरासत में हर चीज में हिस्सेदार है। और उसके बाद परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि देखो, बहुत सारी चीजें हैं जिसको छोड़ते जब आप इसकी तिलावत करेंगी, और कि औरत को कितना मोहतरम करार दिया गया है। बहुत सारी कानून जो जहालत के जमाने में, जाहिलियत जमाना में थे, उन सब से परवरदिगार ने इस्लाम में सबको हराम करार दिया है। हर रिश्ते को जिनको जमाने जाहिलियत में कर रहे थे लोग, उन सबको क्यों? ताकि औरत की इज्जत हो, ताकि औरत को मोहतरम समझा जाए, ताकि बेटियों को इज्जत मिले, औरत को। और वही कहते हैं ना कि परवरदिगार आलम ने जहां हेरिटेज इनहेरिटेंस दिया है औलाद को, वही बीवी को भी हिस्सा दिया है। यानी नस्बी रिश्ता अगर माँ बाप से आता है कि उनकी लीनियज से, कि उनको इनहेरिटेंस में औलाद को मिलता है, वही शौहर से उसकी बीवी को भी हिस्सा दिया जाता है। तो ये परवरदिगार आलम ने इज्जत दी है, क्यों? क्योंकि वो हिस्सा है अपने शौहर का, तो उसके माल में भी ज़ौजा का हक होता है। और वहीं परवरदिगार ने इतनी खूबसूरती से इन सारी आयतों के जरिए ये बताया है कि देखो औरत कितनी मोहतरम है, और इस्लाम में हर बुरे काम को खत्म कर दिया गया है, और वहीं सबको हराम करार दे दिया गया है। अक्द के सिलसिले से भी है, और तेली माँ की सिलसिले से भी है, और उसके बाद बहुत सारी उस जमाने में जो औरतों पर सख्ती की जाती थी, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया जाता था ताकि उनका मेहर न दिया जा सके। इन सब को कानून को अल्लाह ने हराम करार दिया, और इसलिए ताकि बताया जा सके कि दुनिया में ये जो सिन्फ है ये भी बहुत मोहतरम है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की खल्क की हुई एक मखलूक है, जिसे दुनिया को एहतराम देना चाहिए, क्योंकि ये कभी माँ है, कभी बहन है, कभी बेटी है, और कभी ज़ौजा है। तो इसको इतनी मोहतरम होना चाहिए। आप दुनिया में देखें, कहीं भी नजर नहीं आता वो इज्जत व एहतराम। और यहाँ तक के दुनिया में कितने ही, कुरान की आखिरी जो सूरह निसा की चौथे पारे के जो जुज है, उसकी आखिरी आयत जो है वो 24 नंबर की आयत है। उसके इन सारी आयतों में परवरदिगार ने हर रिश्तों को जोड़ने के लिए एक
एग्रीमेंट किया है, चाहे हम तिजारत कर रहे हों, चाहे हम किसी तरह भी, और उन एग्रीमेंट को या उस अहद को या उन रिश्तों को निभाने के लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कभी माल की, कभी हमारे ख्वाहिशों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन परवरदिगार रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर जब निकाह का जिक्र किया है तो परवरदिगार आलम, मैं बस रब्बुल इज्जत हमारी जानें कुर्बान हो जाएं हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम पर, कि रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा मोहतरम मुकद्दस अक़्द निकाह को किया है। क्यों? क्योंकि दुनिया में अक़्द निकाह भी दूसरे मामलात की तरह एक मामला है, लेकिन इसमें बाज ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो दूसरे मामलात में नहीं है। इसीलिए इसका मुआहिदा जो होता है, जो एग्रीमेंट होता है, अक़्द मतलब मुआहिदा, कि ये सख्त और संगीन करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तलाक पसंद नहीं है, अर्श के पाए हिल जाते हैं, इतना मुकद्दस है ये रिश्ता। और इसके बाद परवरदिगार आलम फरमा रहा है, इंसान सोचता है सिर्फ जिस्मानी रिश्ते हैं, नहीं, ये वो रिश्ता है जो निकाह में इंसान का सौदा इंसान से या रूह का सौदा रूह से होता है। ये वो रिश्ता है जो सिर्फ इंसान का जिस्म जुड़ता नहीं है, इंसान की रूह जुड़ जाती है, और इसीलिए कुरान की आयतों के जरिए इसे जोड़ा जाता है। अल्लाहु अकबर, कितना पाको पाकीज़ा परवरदिगार ने कितना मोहतरम करार दिया है औरत को, कि जब जब रिश्तों को जोड़ा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो कहा मेरी कुरान की आयतों के साथ जोड़ो, मेरे रसूल की सेइंग्स, उनके कलाम के साथ जोड़ो। और उसके बाद इसको इतना मुकद्दस करार दिया है, और शोहर के लिए बीवी को। और वहीं हम देखते हैं ना कि सूरे हम कि कुरान की आयत में है कि ये दोनों रिश्ते कैसे हैं, इतना रूहानी, एक दूसरे को सुकून अता करने वाले, एक दूसरे को के लिए कुर्बानियां देने वाले। कितनी कुर्बानियां देनी होती हैं। हम यही आज जो कायनात में नजर आता है कि लोगों ने इतना आसान समझ लिया है इस रिश्ते को कि कभी भी बड़े आसानी से तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब जब हम कदम बढ़ाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम उन कुरान की आयतों को तोड़ रहे हैं जो हमें इस रिश्तों को जोड़ने के लिए पड़ी गई थी। हम उन रसूल अल्लाह की सेइंग्स को गलत साबित कर रहे हैं जो हमें हमें हम इस रिश्तों को जोड़ने के लिए पढ़ी गई थी। हम गौर करें उन आयतों पर, उन कलाम इलाही पर, उन कलाम पर जो रसूल अल्लाह की सेइंग्स हैं कि क्या कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो रिश्ता होता है, ये जो मुआहिदा होता है, रूह का मुआहिदा होता है, और ये हमें कुछ जिम्मेदारियां अता करता है, और वो जिम्मेदारियां हमें उठानी पड़ती हैं। जिम्मेदारियां जब दी जाती हैं, ड्यूटीज दी जाती हैं, हम सिर्फ हक की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं हमारे राइट्स की बात हो, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज की बात नहीं करते। हर रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले अपनी ड्यूटीज को निभाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो राइट्स इतने देता है कि जहां उतना ही देना हो, लेकिन फिर भी वो 10 गुना भी बढ़ा देता है और 100 गुना भी बढ़ा देता है। बस परवरदिगार आलम से दुआ है, या रब्बुल इज्जत जो भी हमने तिलावत की है इस कुरान के कलाम, पाकीज़ा कलाम के जरिए, या रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान को समझने की तौफीक अता कर, अमल करने की तौफीक अता कर, और हमें हमारे कल्ब में वो लज्जत डाल दे, अपनी वो मारिफत डाल दे कि हम जब कुरान की तिलावत करें तो हमारा दिल कुशादा हो जाए, हमारे सीने कुशादा हो जाए, शरह सद्र हो जाए, हम इसे समझ सकें, हमारा कल्ब झुक जाए, हम इस पे अमल कर सकें, और रब्बुल इज्जत हम इतने झुक जाए कि तू हमें बुलंद करे, चाहे शहादत के जरिए, चाहे दुनिया में जो नजर आ रहा है। और परवरदिगार तुझे तेरे कलाम का वास्ता, आज जो दुनिया में जुल्म हो रहा है,
پروردگار تو ظالموں کو نیست و نابود کرنے والے کو بھیج دے۔ پروردگار ہمیں کربلا یاد آ رہی ہے، پروردگار اپنی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا لیکن آج ظلم کی انتہا نظر آ رہی ہے۔ پروردگار کربلا کے ان شہیدوں کا واسطہ ہے، پروردگار ظالموں کو نیست و نابود کر دے اور مظلوموں کے حق کا فیصلہ کر دے، پروردگار ان کو انصاف دے پروردگار، کیونکہ تو ہی بہترین انصاف دینے والا ہے۔ جو شہید ہو رہے ہیں انہیں اعلیٰ درجات عطا کر، ان کی مغفرت فرما، اور پروردگار ہم سب کو جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ہمارے بچوں کو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ پروردگار، اور ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم صبر میں، تحمل میں اور جہاد کے راستے پر چلنے میں سبقت کرنے والوں میں ہو، کہ ہم اپنے مولا کے قدموں تک تیزی سے پہنچ جائے۔ ہم سب وہ ہوں جو قرآن کو سمجھنے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگارہ جو بھی بیان ہوا اس کا ثواب، جو بھی قرآن کی تلاوت ہوئی اس کا ثواب ہم سب چہردہ معصومین، شہدائے کربلا، سیران کربلا اور جتنے شہیدان راہ خدا ہیں، کل انبیاء، کل اوصیاء، ان سب کے والدین کو ہدیہ کرتے ہیں، اور یہاں آمین۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور سبھی مومن مومنات کے والدین اور ان کے سبھی مرحومین کو ہدیہ کرتے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار انہیں نورانی برزخی منزلوں کو پہنچا دے، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان، مشکلوں کو آسان کر دے رب العزت، پروردگارہ انہیں اپنے نورانی مقام جوارے چہاردہ معصومین میں مقام عطا کر دے یا رب العزت، اور ہم سب کو ان کا وہ مقام دکھا دے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام بہت بہت شکریہ آپ کا ہنا آنٹی کہ آپ نے اتنے بہترین طریقے سے پورے پارے کا جسٹ ہماری خدمت میں ہم سب کو پیش کیا کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرما۔ وقت میں کیونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ سب کل مومنین اور مومنات کے لیے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بخش دیں، کیونکہ مغرب کا وقت بالکل نزدیک آ چکا ہے۔ اس سے ہم سے زیارت پڑھیں گے اور اس سیشن کا انشاءاللہ اینڈ کریں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ زیارت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، یا ایہا المدفون بارض طوس، الرضا المرتضی الرازی بالقدر والقضاء، السلطان عربی والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا حاذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وآوانک اجمعین ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
تمام حاضرین کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کے توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے والوں، پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں میں شمار فرمائے اور ہمارے مرحومین کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس ذکر کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جہاں جہاں بھی مظلومین موجود ہیں جن پر ظلم، زیادتی، جبر اور ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، جو بے یار و مددگار ہیں، جو پریشان حال ہیں، پروردگار عالم چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، پروردگار عالم ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ وہ تیرے ماننے والے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں، اس بنا پر ان سے زیادتی کی جا رہی ہے تو ان کا حامی ناصر ہو جاؤ، ان کی مدد ہو جاؤ، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ حاضرین درس کے جو دلی حاجات ہیں ان کو پروردگار قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب جو ہیں ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے تمام مومنین اور مومنات کو بخش دیں۔ اور کشور آنٹی اب آپ سب سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ ان کی بات بھی سن لیں اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ سیشن اینڈ ہو جائے گا۔ کشور آنٹی کہیے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ شاید میوٹ پہ ہیں۔